Hello. Good morning, Morning, sir. sir. Good morning. Good morning. Good morning, Yeah. sir. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everybody. ये exercise 6.4 7 up to 7 6.4 was completed. Tell me, 8 9 question was completed or not? Question number 8, I think 8 was completed. 1.4 ratio, Yes, sir. it was completed. And the 9 will be side square, ratio of side square. 4 square by 9 square is equal to 16 is to 81 will be answer. Optional question is there. Okay. And today we will prove सर 7 तक हुआ है 6 क्वेश्चन नंबर 7. सर 8 से कराना है 8 से हाँ, तो 8 से मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, 8 को आप समझ Yes, सकते sir. हैं. ट्रायंगल ABC and BD are two equilateral triangle such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BDE. You have to find out like this. देखिए, ये ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका मिड पॉइंट D है. D से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल BD बन रहा है. ओके, सपोज ये 2A है, 2A, तो ये इतना A होगा, ये भी A होगा. ओके, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल this will be A also because BDE is another equilateral triangle at the side BD, and BD is equal to half BC. In equilateral 8 question, 7 question given triangle ABC is equilateral. नहीं दिख रहा है, इधर लिखते हैं. अपने मोबाइल में Given को कैसे triangle ABC is an equilateral. ये ऑप्शनल है, इसलिए आपको मैं पूरा सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है. इक्विलेटरल है एंड BD is equal to half BC. हाँ, लेट इसको मान लीजिए AB is equal to BC is equal to CA is equal to A. 2A मान लीजिए. Then BD is equal to BC by 2. It means 2A by 2 is equal to A. Equilateral BDE भी है. Area ABC upon area BDE is equal to साइड स्क्वायर रूट 3/4 होता है ना इक्विलेटरल की एरिया. बोलिए. यस सर. तो साइड यहाँ पर ABC के लिए 2A है, 2A का स्क्वायर और रूट 3/4, और इसका हो जाएगा A का स्क्वायर और रूट 3/4. ये रूट 3/4 कैंसिल होगा और ये 4A स्क्वायर बाई A स्क्वायर ये कैंसिल होगा, तो ये 4/1 यानी 4:1 आंसर ना. ऑप्शन 4:1 इज करेक्ट. ओके, सर. अंडरस्टूड. सर. हाँ बोलिए. सर, बोलिए. जो इक्विलेटरल में आप जो बड़ा वाला ट्रायंगल है सर, उसका साइड आप 2A माने है ना, तो वो क्वेश्चन में तो नहीं दिया है ना सर. ये आप मान सकते हैं क्वेश्चन अपने में. मन से. अपने मन से आप 2A मान लीजिए तो आसान हो जाएगा सॉल्यूशन. A भी मान सकते भी मान हैं. सकते हैं. हाँ, तो A/2 करना पड़ेगा ना, तो 2A मानने से ठीक ओके रहेगा. सर. Okay, students. Now, tell me another question. The exercise Pythagoras theorem.
Today we will study Pythagoras theorem. Have you written this one? Yes, sir. Yes, sir. विजय सर ऑन कर दीजिए रिकॉर्डिंग. ऑन है. ओके. Okay, students, Pythagoras theorem. You know, first of all, Pythagoras theorem. You know that in triangle ABC, it is hypotenuse, it is perpendicular and base. Pythagoras theorem is h square is equal to p square plus b square. You already know. आप पहले से जानते हैं. And the first theorem 6.7 is given. Theorem 6.7. Theorem is if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle triangle, it is right angle triangle, and perpendicular is drawn to the vertex of right angle से hypotenuse पे perpendicular draw किया गया है. Okay. Right angle triangle अगर to the hypotenuse, then triangle on the both side of the perpendicular are similar to the whole triangle. You have to prove that if it is A, B and C. Given given triangle ABC is right angled at D, such that BD perpendicular AC. Here is perpendicular both side. We have to prove that. To prove ये both triangles को आपको सिमिलर प्रूव करना है. ये दो स्मॉलर ट्रायंगल जो बन रहे हैं, ये ट्रायंगल ADB और ये ABC का ये ट्रायंगल यानी ABC आप जब बोल रहे हो तो इसको BDA बोलेंगे या ADB बोलेंगे, जो बीच में राइट एंगल बोलेंगे. तो ADB और CDB ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना है ABC के. ओके, ये कह रहा है टू प्रूव ट्रायंगल ADB similar triangle ABC and triangle ADB के बाद वो दूसरा वाला जो पार्ट है BDC, उसको भी करना है. ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये गिवन है. ध्यान दीजिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग what is to prove and what is given? Given is ABC is a right angle triangle which is right angle at B and BD is perpendicular to AC such that BD is perpendicular to AC. Hence, two smaller triangle are there inside ABC. That is triangle ADB. आपको corresponding बोलना है तभी ये प्रूव होगा. देखिए ADB बोल रहे हैं तो यहाँ D 90 डिग्री है और ABC में B 90 है, बीच में यहाँ D पड़ रहा है, इसका भी 90 वाला बीच में पड़ रहा है. D and B both are 90 degree. So you should read it properly so that the corresponding side will be in sequence. Like ADB, देखिए ADB ट्रायंगल का राइट एंगल D है, ABC का राइट एंगल B है, दोनों बीच में पड़ना चाहिए. B यहाँ D and B और सिमिलर प्रूव करना है ABC का सिमिलर. और दूसरा ट्रायंगल
बीडीसी में डी 90 है और एबीसी का भी बी 90 है, इसको भी आपको सिमिलर प्रूफ करना है. ओके, नाउ आई एम राइटिंग प्रूफ. प्रूफ में आप पहले ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एबीसी. See, in triangle ADB and triangle ABC, okay, angle A कॉमन है कि नहीं? बोलिए. एंगल A इज कॉमन बोथ इन ADB और ABC दोनों में कॉमन है. और एंगल ADB is equal to angle ABC each 90 degree. ये गिवन है, ये 90 है, ये भी 90 है, इसलिए दो एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. बोलिए. Therefore, triangle ADB similar triangle ABC A similarity. Angle similarity. हाँ, angle similarity. Okay. Understood? Similarly, इसी तरह से दूसरे को आप लिख देंगे. Similarly, triangle BDC similar triangle ABC. Okay, proved. देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं? Students, see it one by one, step by step. Are you understanding properly or not? And tell me, Sir. Have you written? Sir. हाँ बोलिए. सर, जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉन किए बीडी हाँ, की जो बन रहा है सर, उन दोनों को भी सिमिलर प्रूफ करना है. नहीं, इन दोनों को आपस में सिमिलर नहीं करना है. ये छोटे वाला, ये ट्रायंगल ADB जो बन रहा है उसको इस बड़े वाले का, यही थ्योरम में दिया है. ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं ADB एंड BDC बोथ आर सिमिलर टू ABC. ABC के दोनों को सिमिलर करना है, बड़े वाले का सिमिलर दोनों छोटे को करना है. ओके. ओके सर. और सेकंड वाला थोड़ा एक बार बता दीजिए. सेकंड वाला मतलब सर, ये एंगल BDC सिमिलर टू एंगल ABC. देखिए, BDC को आप सिमिलर कर सकते हैं ना, C कॉमन है, ABC में भी C है और BDC में भी C है. ओके. और एंगल BDC 90 है और ABC में B 90 है. तो जैसे उसमें है उसी तरह इसमें है कि नहीं है? एक कॉमन और एक 90 है दोनों में. यस सर. ओके. यस सर, हो जाए. Now I am going to start 6.8. Are you ready? 6.8 के लिए आप तैयार हैं? यस सर. Okay, theorem 6.8. Theorem is if perpendicular. This is theorem. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. The square of the hypotenuse is equal to the squares of the squares of other two squares
squares of sum of other two sides. Other two sides. Here, And it is a right angle angle opposite triangle. to The same triangle, like 6.7, the same triangle we will draw. A, B, C, D. Here 90 degree. And we have to prove that the square of hypotenuse, it means AC square is equal to AB square plus BC square आपको प्रूव करना है. ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल का हेल्प लेंगे आप. Given in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. To prove triangle AC square is equal to AB square plus BC square. देखिए गिवन टू प्रूव भी आपको लिखना चाहिए, क्योंकि जब बोर्ड की कॉपी हम लोग चेक करते हैं उसमें उस पर भी एक नंबर दिया रहता है मार्किंग स्कीम में. तो ऐसा नहीं कि बिना गिवन टू प्रूव के ही आप बोर्ड में कॉपी मतलब अप्रूव कर दीजिए. उसका इम्पोर्टेंस है, उसको भी आपको लिखना चाहिए. लिखेंगे तो यदि सॉल्यूशन गलत भी होगा तो उस पर एक नंबर मिल जाएगा, आधे नंबर मिल जाएगा. ठीक है, तो प्रॉपरली करना है. ओके, नाउ टू प्रूव, ये टू प्रूव था. अब प्रूफ लिखने जा रहे हैं. कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं है, प्रूफ है. ये मैंने इसलिए छोड़ा है कि ये आपको सिमिलर दिखाना है, जैसा कि आपने सिमिलर दिखाया, और सिमिलर ट्रायंगल से ही ये प्रूव होगा. इसीलिए मैंने इसको छोड़ा है, जो 6.7 में अभी प्रूव किया है. लिखेंगे इन triangle ADB and triangle ABC, angle A common, angle ADB is equal to angle ABC is equal to 90 degree. Therefore, triangle ADB similar triangle ABC by A similarity. ये आपको इसमें भी लिखना पड़ेगा पर सिमिलरिटी. ओके, सिमिलरली इसको भी लिख दीजिए, नीचे वाला भी. सिमिलरली ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC, A सिमिलरिटी ये भी होगा. ये आपको पता है. अंडरस्टूड? ऑलरेडी यू हैव अंडरस्टूड दैट बोथ स्मॉलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू लार्जर ट्रायंगल, दैट इज ABC. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. AD अपॉन, हाँ देखिए ये दोनों सिमिलर है, आपने इसको सिमिलर दिखाया है. तो AD, ये AD पहले में देखिए ध्यान से, AD अपॉन AB. बोलिए, ये AD और AB करस्पॉन्डिंग है ना साइड. AD अपॉन AB इज इक्वल टू ये BD अपॉन BC होगा. BD अपॉन AB अपॉन क्या होगा? बोलिए, AC. AB अपॉन AC AC होगा. आप लिख सकते हैं, AC. इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहीं पर गड़बड़ हो सकता है. वंस अगेन, ADB एंड ABC जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा. हमने लिखा है पहले AD बाई AB, करस्पॉन्डिंग है ना AD बाई AB सर. और उसके बाद पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात. AB और AC ये करस्पॉन्डिंग मैंने लिखा है. हाँ बोलिए. अब सर जैसे यहाँ पे आप प्रूव किए हैं बीच में एंगल A कॉमन, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री. हाँ, अगर इसको प्रूव नहीं करते तब भी तो हो जाएगा ना बाय थ्योरम 6.7. देखिए जब थ्योरम आपको देगा प्रूव करने को एग्जाम में, तो आपसे ये आशा करेगा कि पहले आप इसको सिमिलर दिखाइए, तभी सिमिलर की प्रॉपर्टी लागू करेंगे.
सिमिलर आपको करना पड़ेगा. You have to similar first of all, then after apply the property of similarity. Okay. Now cross multiplication AB square is equal to. हमके 1:30 बजे तो कॉलेज में होना. Don't talk. देखिए आपस में आप बात कर रहे हैं. Mute yourself. If anybody, किसी को आप बात करना अपने गार्जियन से. Your sound is coming to everybody. You are reading in class 10 and don't caring this one. Mute करके बात करिए अपने पेरेंट्स से. Now cross multiplication AB square is equal to AD into AC. This one equation first. First of all, try to understand up to this. यहाँ तक आप क्लियर समझ लीजिए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, उसके बाद हो जाएगा. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? Anybody, any doubt? Please clear it. क्लियर है सर. Clear है. Okay, very good. No. Now similarly in triangle, in similar triangle, triangle AD, this one, second one, this ADB not BDC ना. सेकंड वन हमने जो सिमिलर किया था वो BDC किया था. ये तो ठीक है. ADB BDC यहाँ लिखा है, देखिए BDC एंड ABC. ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC. अब इसमें भी कर लीजिए उसी तरह. बोलिए इसमें क्या होगा? अब इसमें हमको AB स्क्वायर ला दिया है ना, ध्यान दीजिए. अब BC स्क्वायर लाना है तो BC ही को पहले लिखा जाए. इसमें BC अपान क्या होगा? बोलिए BC अपान AC इक्वल टू. अब BC अपान B. अब फिर नीचे AC आना, ऊपर AC आना चाहिए. AC BC लिख दीजिए ऊपर. हमको BC स्क्वायर लाना है ना, BC स्क्वायर लाना है तो BC यहाँ पर यदि आप BC लिखे हैं, BC अपान AC. ठीक. अब AC हमने इसमें AC स्क्वायर ला दिया है, इसमें BC स्क्वायर लाना है तो BC नीचे होगा और BC यदि BC अपान AC इक्वल टू DC अपान BC होगा. DC अपान BC होगा. DC अपान BC होगा. बोलिए. यस सर. अब क्रॉस कर ले, अब क्रॉस कर लीजिए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC. BDC AC इंटू DC होगा ना. BC स्क्वायर इक्वल टू यस सर. AC इंटू DC. ये सेकेंड नंबर. अब दोनों को जोड़ना पड़ेगा. फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को आप ऐड करेंगे. मैं यहाँ लिख देता हूँ. यहाँ दिख रहा है सर. नहीं दिख, वहाँ नहीं दिखेगा. यहाँ पे दिख रहा होगा. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. जोड़ते हैं. या इसमें AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू इसका है. सॉरी, पहले वाले में क्या आया था? AB स्क्वायर आया था ना. यस सर. पहले वाला इक्वेशन कहाँ है? AB स्क्वायर सर. ये है यहाँ ना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में करने जा रहा हूँ. देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC. पहला वाला AD इंटू DC है और उसके बाद प्लस नहीं हट रहा है ना, नीचे लिखते हैं. वहां आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिखते हैं. इक्वल टू AD इंटू DC प्लस AC इंटू DC. AC इंटू DC ये दिख रहा है. ये दिख रहा है सर. यस सर. दिख रहा है. यस सर. दिख रहा है. अच्छा, दिख रहा है. तो इसमें दिख कॉमन रहा क्या है. है? बोलिए कॉमन. DC दिख रहा है. AD इंटू AC है बेटा. ये
AC कॉमन है ना, AC हो Yes, जाए। sir. Yes, AD sir. प्लस Yes, sir. DC, AD plus तो DC. तो AC इंटू AD और DC जोड़िए फिगर में, AD में DC जोड़ेंगे तो AC होगा, बोलिए AC इक्वल टू Yes, AC sir. स्क्वायर हो गया ना, Yes, sir. यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया। सर एडिंग इक्वेशन के AB स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर स्क्वायर है। नहीं लिखेंगे। नहीं, ये AD प्लस DC जोड़ने पर AC होगा ना, और AC Yes, sir. पहले से यहाँ पर है, ये AC हो जा रहा है, और ये AC पहले से है तो AC स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। सर वहां नहीं पूछ रहे हैं सर, हाँ। एडिंग इक्वेशन के नीचे AB स्क्वायर छूट गया है, स्क्वायर ऊपर। ये छूट गया है ना, क्या पूछ रहे हो? ये एक नंबर इक्वेशन में AB स्क्वायर है ना, यस सर। स्क्वायर इसलिए आया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जब करेंगे तो AB इंटू AB स्क्वायर आएगा ना, यस सर। और AD में AC से करेंगे तो AD इंटू DC आएगा। इसी तरह इसमें भी देखिए, BC इंटू BC स्क्वायर होगा ना, और AD इंटू AC इंटू AC DC हो गया, और दोनों को जोड़े हैं। तो अब आपने प्रूव कर दिया कि AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AC स्क्वायर। यही ना प्रूव करना AC था। square. ये Yes, दोनों sir. साइड हाइपोटेनस का जो AC है इसका स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया, प्रूव हो गया। आराम से समझिए, कोई ट्रेन नहीं छूट रहा है। इसको फिर से आप हमसे पूछिए जहां कहीं भी नहीं समझ में आ रहा हो। आई एम वेरी रिलैक्स, बहुत धीरे धीरे आपको बताया जा सकता है, आप पूछिए जहां समझ में नहीं आया हो। सर AC Sir, स्क्वायर की जगह repeat. बोलिए। If anybody any doubt is there, important theorem is Sir, Pythagoras important theorem है, एग्जाम में आ सकता है। सर AC स्क्वायर कैसे है, थोड़ा एक बार बता दीजिए। AC स्क्वायर जो मैंने पहले लिखा है बेटा। अच्छा, यहाँ AC, यहाँ देखिए AC स्क्वायर किस में आया है, AC स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकंड में आया है। कौन AC स्क्वायर? तो यहाँ पर ये पूछ रहे हो क्या, बोलिए। AC को पूछ रहे हैं ना। तो देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जब आपने लिखा है तो AB स्क्वायर में AD इंटू AC मिला है, मैंने लिखा है AD इंटू AC, AB स्क्वायर का हो गया। अब प्लस BC स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन में BC स्क्वायर इक्वल टू मिला है AC इंटू DC लिखा, प्लस करके लिखा ना। तो ये बताइए इसमें कॉमन क्या है, इस पूरे में कॉमन AC कॉमन है कि नहीं? yes, AC sir. कॉमन जब आप लेंगे तो यहाँ इधर से AD बचेगा और इधर से DC बचेगा, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो AC कॉमन है, और AD प्लस DC को आप फिगर में देखिए, AD में DC आप जब जोड़ते हैं AC नहीं हो जाएगा, AD प्लस DC इक्वल टू AC होगा कि नहीं, फिगर से यस, हो जाएगा। हो जाएगा। तो आप इसको AC ब्रैकेट को लिख सकते हैं ना। तो AC इंटू AC स्क्वायर हो गया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ थ्योरम 6.9 इज लेफ्ट। अब से थ्योरम 6.9 बताएंगे। Sir, हाँ बोलिए। sir, the statement is given, sir. The diagonal of rectangle produces by itself the same area as produced by its both sides. That is length and breadth. Sir, what is it? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। हाँ फिर से बोलिए। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोड्यूसेस
by itself the same area. हाँ, प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया, The उसके बाद same बोलिए area सेम as एरिया produced by its both sides. बोथ साइड सेम एरिया। ओके, उसके बाद सर ये मतलब यही स्टेटमेंट दिया है बस, और कुछ नहीं दिया है। तो क्या क्या करना है? सर करना कुछ नहीं है, मतलब ये पूछ रहे थे सर मतलब ये क्या है, मतलब स्टेटमेंट एक दिया है नीचे इटैलिक में करके। इस बुक में दिया है? यस सर, इसी थ्योरम के बुक, नीचे। अच्छा इसी बुक यस में सर, दिया है, मैं पढ़ लेता हूँ। 6.9 के ऊपर थर्ड पैराग्राफ में, थ्योरम 6.9 के ऊपर। हाँ देख रहे हैं। सिक्स पॉइंट 9 के ऊपर, हाँ। If the diagonal of a rectangle produces by itself, अच्छा रेक्टेंगल के डायगोनल को बढ़ा रहे हैं, सेम एरिया आई प्रोड्यूस्ड बाय इट्स बोथ साइड। हाँ ये कह रहा है, देखिए सुनिए, इसको आगे बढ़ा रहे हैं आप डायगोनल को, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, मान लीजिए एबीसीडी रेक्टेंगल है, इसी को मान लीजिए सपोज दैट ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके यस सर, हाइपोटेनस जो है ना, डायगोनल यानी हाइपोटेनस ये हो गया राइट एंगल का, इसको आपने इस तरह बढ़ाया कि एक स्क्वायर बन गया, और इस यस सर, बीडी को भी आपने एबी को भी बढ़ाया, एक स्क्वायर बना दिया एबी को भी। इसी बात को कह रहा है, देखिए इसको भी स्क्वायर आपने बना दिया, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस करने पर इसके बराबर होगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा, जो आपने प्रूव किया है उसी बात को कह रहा है। अच्छा यस, ठीक है, बहुत हाँ। ओके। 10 minutes time is remaining, nearly 8 minutes. You can ask me if you want to proof of next theorem, then I will start. यदि आप चाहेंगे तब मैं अगला थ्योरम स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, थोड़ा सा टाइम बचा है, तेजी में बताएंगे। थ्योरम 6.7 सर अभी टाइम 6.7 6.7 बता दें फिर से। ओके, सिक्स पॉइंट सेवन थ्योरम ये था कि सिमिलर करना था, मैं मिला देता हूं फिर से। 6.7 में ये राइट एंगल ट्रायंगल एक है, इसमें एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल है एट बी पे, इसमें बी से एसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉन है डी। यू हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव इसमें दे रहा है, गिवन में ये है कि इन ट्रायंगल, यहां पर लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, बीडी यहां दिया है कि बीडी परपेंडिकुलर एसी है। टू प्रूव जो कह रहा है, ये टू प्रूव में ये कह रहा है कि ट्रायंगल ये एडीबी और एडीबी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी फर्स्ट में, एंड दूसरा भी ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, ये आपको प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दैट दिस स्मॉलर ट्रायंगल इज सिमिलर टू लार्जर ट्रायंगल। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? एंगल ए कॉमन है ना, इसमें आप पहले वाले में ले रहे हैं, फर्स्ट में, फर्स्ट को हिंट कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट में एंगल ए कॉमन होगा, और एंगल ए बी, बताइए बीडीसी क्या होगा? एडीबी बता दीजिए, एडीबी एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल एबीसी होगा। एबीसी 90 डिग्री है ना, एडीबी ये 90 है और एबीसी ये 90 है, तो ये दो एंगल जब इक्वल हो गया तो आप कह सकते हैं इसको सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी
सिमिलर जी। ट्रायंगल ए बी सी, ABC भाई ए सिमिलैरिटी से हो जाएगा। एंगल एंगल सिमिलैरिटी हाँ, एंगल सिमिलैरिटी से हो जाएगा। एंगल सिमिलरिटी। ए सिमिलैरिटी। इसी तरह से आप इसको भी लिख देंगे BDC ABC, इसमें भी C कॉमन है और BDC इक्वल टू ABC है, तो ये भी एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर, बस यही करना है, दोनों स्मॉलर ट्रायंगल को लार्जर ट्रायंगल ABC का सिमिलर बताना है। ओके, Yes, sir. okay, now if you want to know other about this exercise not theorem, हाँ, listen to me, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में। हाँ, एग्जाम्पल नंबर क्लास चलेंगे? कल नहीं चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 12, 13 एंड 14 स्टूडेंट्स, इसको टिक कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12, 13 एंड 14 इज इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए आप इसको देख लेंगे, अपने से करिएगा, फिर नहीं आएगा। कौन सा सर? कौन सा? 12, 13 एंड 14। पेज नंबर सर? पेज नंबर 148, 148। पेज नंबर 148। यस सर। एंड आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल इजी है, लेकिन यदि फिर भी ये क्वेश्चन नंबर 14 यदि नहीं आता है तो इसको बोर्ड में बताया जा सकता है, लेकिन टाइम अभी नहीं है, अभी तो टाइम बहुत कम है। नाउ आवर मीटिंग विल बी एंड, कितने मिनट बचा है? 2 मिनट। 2 मिनट। सर स्कूल कब से खुलेगा? देख, सितंबर, मे बी सितंबर, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं है। 21 सितंबर। सर फिर गवर्नमेंट का ऐसा है कि नहीं खुलेगा कि सितंबर से? यूपी गवर्नमेंट तो कह रही है नहीं खुलेगा। यस सर। यस सर, बहुत प्रॉब्लम हो गया। अक्टूबर से हो सकता है यूपी में खुल जाए। यस सर, कह रहा है अक्टूबर से खुलेगा। Now, exercise is there, students. Exercise 6.5. Listen one question. Exercise from exercise 6.5. The question is given here. The sides of triangle is given. You have to show that which one sides are right. The length of hypotenuse is there. Determine sides of triangle are given. डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल। आपको बताने हैं कि राइट एंगल कौन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप क्या करोगे, दो स्मॉलर साइड का स्क्वायर कर लेंगे, और यदि उसका स्क्वायर बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ सुनाई दे रहा है, प्लीज स्पीक। हाँ तो सर आई एम सेइंग दैट गाना बज रहा है, कौन बजा रहा है गाना? गाना तो मुझे नहीं सुनाई